Hello friends, I'm Poonam Badguja, Senior Chemistry Faculty in Vidyamandir classes. This is our chemistry class where we are going to cover the MOT answers which is held in the last week, right? And here is our questions where the first question is which of the following represent the neutralization reactions? Now we know that the neutralization is reaction where acid bases are react together will form the salt and water. So I have to find which is an acid or a base. Vinegar is an acid. On the wasp, this is also an wasp sting is also an acid, right? Brushing your teeth with toothpaste is not a neutralization reaction where the sodium hydroxide react with the hydrochloric acid to form the sodium chloride. Okay. Here we have to see that the which of the following is a neutralization reaction, right? हमें ये देखना है विनेगर एक एसिड है, ठीक है? वॉस्प स्टिंग ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि वॉस्प स्टिंग जो होता है वो बेसिक इन नेचर होता है, जो हमारे अंदर वो छोड़ते हैं दैट इज द बेसिकली वॉस्प छोड़ते हैं आर द बेसिक इन नेचर. विनेगर इज एसिडिक इन नेचर. इट इज अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. यस इट इज ट्रू. ब्रशिंग आवर टीथ विद द टूथपेस्ट, राइट? टीथ को अगर मैं टूथपेस्ट से ब्रश करती हूँ इज ऑल्सो नोन एज द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बिकॉज टीथ के अंदर समटाइम्स ड्यू टू द डीके ऑफ द सम बैक्टीरिया आर देयर ड्यू टू विच कि वहां पे टूथपेस्ट एज अ बेस काम करता है टू क्लीन आवर tooth, right? So it is also a neutralization reaction. And if I talk about the sodium hydroxide is an base and hydrochloric acid is an acid, they will form sodium chloride and water is get formed. This is also a neutralization reaction. So answer is the all of the these, right? Tomato sauce is of which acid? Tomato and spinach has the oxalic acid present in it. So answer is the oxalic acid, right? So it is just an fact based questions which you need to remember, and there is no clue or you can say that there is no reason around this because टूपे अगर उसके अंदर वो चीज होती है मतलब होती है. Tooth enamel is made up of the calcium phosphate, right? Now here are some questions are there on my screen where I can see कि many salts absorb water from atmosphere. This property is called salt. मैं यहाँ पे बेटा चारों पांचों को एक्सप्लेन करके दूंगी बट सबसे पहली बात तो एडिशन का मतलब आपको पता है कि कुछ चीज किसमें ऐड होना. हाइड्रेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ वाटर. डेलिक्यूशन का मतलब होता है एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम एटमॉस्फेयर, राइट? और एफरवेसेंस का ना मतलब होता है बेटा रिलीज वाटर इन एटमॉस्फेयर, राइट? सो मेरा आंसर क्या होगा? विच एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम द एटमॉस्फेयर इज डेलिक्यूसेंट, राइट? इज द डेलिक्यूसेंट, राइट? Okay, we are proceeding further for the fifth question, pH range of the blood. Thus, I have provided one more table for your in your videos where I have provided the key pH इसका इतना होना चाहिए, उसका उतना होना चाहिए, strong acid का इतना है, weak acid का इतना है, अपने टूथब्रश में pH इतना है, blood में pH इतना है, प्योर वाटर का इतना है, रिवर वाटर का इतना भी हो चुका है. All data I have provided. This is again a fact-based question which I need to remember कि pH of the blood is around 7 to 7.8 होना चाहिए, right? Now, I have one more. Which of the following is used in the dissolution of noble metals? I should know that. What do you mean by noble? Noble का मतलब होता है which won't react with anybody. Which won't react with anybody. ऐसे में मेरे पास कुछ ही metals है जैसे कि सिल्वर. सिल्वर से भी बेटर है मेरे पास गोल्ड और उससे भी बेटर है मेरे पास प्लैटिनियम. गोल्ड एंड प्लैटिनियम आर द मेटल्स विच वोंट डिसॉल्व इन एनी ऑफ द एसिड. कोई सा भी एसिड ले लो वो उसमें डिसॉल्व नहीं करता बिकॉज दे आर नोबल. दे डोंट रिएक्ट विद एनीबॉडी. दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग फॉर वियरिंग इन द nose rings and ears and in the neck as a necklace and
एंड सो ऑन, राइट? सो मेरे पास जो मैंने अभी तक बुक में पढ़ा, दैट इज नोन एज द एक्वारिजिया. व्हाट डू यू मीन बाय द प्रोनाउंसिएशन यू हैव टू मेक? दिस इज एक्वारिजिया, राइट? Aquarigia is made up of the HCl ratio HNO3. Make sure students how I am writing the formula. आप लोग कैसे लिखते हो? HNO3 को लिखना है तो HNO3. दिस इज अ रॉन्ग वे टू राइट. HNO3 कैसे लिखा जाएगा? HNO3 is in the bottom, HB capital, NB capital, OB capital, right? ये भी वे आपका गलत है, ये वाला वे सही है. आप लोग ऐसे भी कभी कभी लिखते हो. दिस इज ऑल्सो रॉन्ग, राइट? सो बेटा मेक श्योर कि यू आर गिविंग रिस्पेक्ट टू ईच एंड एवरी एलिमेंट करेक्टली, राइट? बिकॉज उनको डिस्कवर करने में इतनी मेहनत लगी है और आप लोग उनका इज्जत एक ही पल में उतार देते हो. तो दिस इज द राइट वे टू राइट द फॉर्मूला. मेक श्योर कि यू विल राइट फॉर्मूला करेक्टली इन योर कमिंग होमवर्क्स एंड वर्कशीट्स. नाउ हम लोग एक्वारिजिया की बात कर रहे थे, वेयर HCl is there and HNO3 is there, where HCl is in the 3 ratio and HNO3 is in the 1 ratio, right? So my answer is this one. एक्वारिजिया के अंदर गोल्ड, प्लैटिनियम, सिल्वर, these are the noble metal which can be dissolved easily. Now, which one of the following can be used as an acid-base indicator by visually impaired students? Visually impaired का मतलब है they are not able to see the things. The world for them is the black and white. So they can be only, they have a very strong essence of the smell. कि वो लोग olfactory indicators को बहुत अच्छे से जान सकते हैं. अब मैंने यहाँ पे एक word use किया है, that is known as the olfactory इंडिकेटर. ऑल फैक्ट्री का मतलब क्या होता है बेटा? स्मेल वाले इंडिकेटर. अब स्मेल वाले इंडिकेटर्स में मैंने आपको अभी तक दो पढ़ा है, दैट इज अनियन एंड वनीला. तो अनियन एंड वनीला आर दोस ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स व्हिच कैन बी यूज्ड फॉर द दिस यू विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट्स, वेयर अगर वो सूंघ ले, मान लो कि अगर उन्हें एसिड और बेस नहीं पता चल रहा है, तो वो क्या करेंगे कि वनीला का एक्सट्रैक्ट, वनीला के एक्सट्रैक्ट में थोड़ा सा एसिड डाल के देखेंगे, still the smell will come. अगर वो बेस में डाल के देखेंगे तो the smell will disappear. तो आपको ये देखना है कि वो सब्सटेंस जिसमें स्मेल डिसअपियर हुआ है, दैट इज नोन एज द बेसिक सोल्यूशन. तो मेरा आंसर जो यहाँ पे करेक्ट आंसर है वो क्या है बेटा? दिस आई एम नॉट एबल टू राइट ओवर हियर, तो मैं यहाँ पे सिर्फ लिख दे रही हूँ कि सी ऑप्शन इज माय करेक्ट. ओके, right? Now I have the 8th question over here, where the sodium hydroxide. So sodium hydroxide is used as an sodium hydroxide is used, मैंने जो mainly हम लोगों ने पढ़ा है वो क्या पढ़ा है? Sodium hydroxide is mainly used in the मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोप. अब मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोप में क्लिनजिंग एजेंट का भी वन ऑफ द प्रॉपर्टी इज देयर, बट अल्कलाइन बैटरीज में नहीं यूज होता, आंट एसिड में ये यूज नहीं होता. आंट एसिड में माइल्ड बेसिस यूज होता है. सोडियम हाइड्रोक्साइड इज एन स्ट्रॉन्ग बेस, राइट? सो इट इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ द सोप. नाउ Bhoju took a turmeric paper and tried to draw the flower on it with the help of the cotton buds dipped in the solution P and Q. The flower drawn with the solution P was not visible while drawn in the Bhoju, where we were, it will help in the cotton buds to dip in the solution P and Q. The flower drawn with the solution P was not visible while one drawn with the solution Q turns red. The solution P and could be respectively. देखिए फ्लावर P solution में not P solution was not visible while drawn in the Q will turn red. तो टर्मरिक पाउडर का आपको ये देखना है बेटा, एसिड में क्या रोल है, बेस में क्या रोल है वो देखना है. बेस के केस में इट विल टर्न रेड एंड इट इज नॉट विजिबल, तो एसिड के केस में इट विल रिमेन एज इट इज, राइट? तो हम लोगों को ये लिखना है सोप सोल्यूशन बेसिक होता है और तुम्हारा विनेगर एसिडिक होता है. तो आंसर इज B. Now 10th question, in terms of the acidic strength, which one of the following is correct order? Acidic strength में increasing order देना है, तो मतलब मुझे बेटा we have to go from the less to
मोर एसिडिक की तरफ जाना है, तो लेस एसिडिक वही होंगे, जैसे कि मैं बात लेस एसिडिक मतलब ऑर्गेनिक एसिड, फिर वाटर इज न्यूट्रल, देन थोड़े से मैं आगे आगे बढ़ती जाऊंगी, तो यहाँ पे वाटर सबसे पहले लिखा हुआ है, यस न्यूट्रल है, एसिटिक एसिड है, एक एसिड है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो मेरा आंसर मुझे ए में ही मिल गया, राइट। ये देखो 7 इसका पीएच होता है, नेक्स्ट वाला पीएच अराउंड 6 जाएगा एसिटिक एसिड का, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का 2 से लेकर 1 के बीच में पीएच होता है, राइट। सो मेरा आंसर क्या हो गया बेटा, फर्स्ट हो गया। नाउ ओके, थैंक यू सो मच गाइस। ओके